Hello students, welcome in your accounts class. स्टूडेंट्स अकाउंट्स में आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हमने प्रैक्टिकल पार्ट एक बार डिस्कस किया था। अब इसको हम थ्योरी, प्रैक्टिकल और इनके रूल्स के साथ इनकी पोस्टिंग सब डिस्कस करेंगे। तो इसको हम थोड़े से अलग मेथड से भी करने वाले हैं। Accounting equation that signifies that assets of business are always equal to the total of its liability and capital. Capital which we denote is owner's equity. The equation reads as, इसका equation कैसे बनता है? Assets is equal to liability plus capital, जिसमें assets A is equal to assets, L is equal to liabilities and C is equal to capital. The above equation can also be presented in the following forms as its derivative to enable the determination of missing figures of capital or liabilities. तो इस इक्वेशन में से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे A is equal to L plus C यानी कि liability plus capital, और जब आप इसको इधर लाएंगे assets minus liability is equal to capital, और ऐसे ही asset minus capital is equal to liability. तो इधर से भी हम इस इक्वेशन को ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं. Since the accounting equation depicts the fundamental relationship among the components of balance sheet, it is also called the balance sheet equation. तो accounting equation जिसको हम assets is equal to liability plus capital कहते हैं, उसको accounting equation को हम balance sheet equation भी कहते हैं. As the name suggests, the balance sheet is a statement of assets, liability and capital. बैलेंस शीट क्या है, किस चीज की स्टेटमेंट है? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की. At any point of time, the resources of business entity must be equal to the claims of those who have financed these resources. The proprietors and outsiders provide the resources and business, and the claim of proprietors is called capital, and that of outsides is known as liability. And each element of the equation is the part of balance sheet which states the financial position of the business on particular date. When we analyze the transactions, we actually try to know that how balance sheet of business entity gets affected. अब इसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे? एसेट्स के पार्ट में. और जितना भी आपने बाहर देना है, यू आर सपोज टू ओ टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड विच द अमाउंट विच आर लाइबल टू पे इज कॉल्ड लाइबिलिटी. तो अकाउंटिंग एलिमेंट में हर एलिमेंट में जो भी एक इक्वेशन बनेगी वो किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का, जो कंपनी की किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है. जब हम ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं तो हम उस टाइम पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि दैट हाउ बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस इज गेटिंग अफेक्टेड. तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करें तो उससे ये पता लगता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो अफेक्ट कैसे हो रही है. At any point of time, resources of business entity must be equal to the claims of those who have financed these resources. The proprietors and outsiders provide the resources of business. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं ये क्या है? ये इसके इक्वल होने चाहिए. इट मस्ट बी इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ दोज हु हैव फाइनेंस द रिसोर्सेज. तो ये हमारे उसके इक्वल होने चाहिए. द प्रोप्राइटर्स एंड आउटसाइडर्स, जो दोनों यानी प्रोप्राइटर्स जो कंपनी के हम ओनर्स की बात करें, और जो आउटसाइडर्स हैं, दे प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस. तो ये बिजनेस के रिसोर्स की बात कर रहे हैं. एंड द क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर्स इज कॉल्ड कैपिटल. और जो प्रोप्राइटर्स क्लेम करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल. एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज नोन एज लायबिलिटी. Each element of accounting equation is the part of balance sheet. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.
asset side of a balance sheet is a list of assets and which the business entity owns. अब बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है, ये जो बिजनेस एंटिटी ओन्स यानी कि जो उसकी अपनी होती हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं. Liability side of balance sheet is a list of owners claims and outsiders claims, that is what the business entity owes. The equality of asset side and liability side of balance sheet is an undeniable fact, and this justifies the name of accounting equation as balance sheet equation also. जो हमारी इक्वालिटी होती है एसेट्स और लायबिलिटीज की बैलेंस शीट के दोनों साइड्स की, विच इज अनडिनाइबल फैक्ट दैट दिस जस्टिफाइज द नेम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. जो हमारी दोनों इक्वल साइड्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, और जिसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं. एक एग्जांपल के साथ इसमें लेके चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को. For example, Rohit started business with a capital of rupees 5 lakh. From the accounting point of view, the resources of this business entity is in the form of cash 5 lakh. तो उसने एक बिजनेस शुरू किया 5 लाख से. उस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द रिसोर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज, अब बिजनेस का रिसोर्स कहाँ से बढ़ रहा है, उन 5 लाख से जहां से उसने बिजनेस शुरू किया. और इस सोर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय रोहित 5 लाख एज कैपिटल. जो उसने 5 लाख कैपिटल लगाई उसको हम एज अ कैपिटल एज्यूम करेंगे. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल रेफर दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में लेके चलते हैं. ठीक, अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो बुक्स ऑफ रोहित, हम सीधा किस पे आते हैं, बैलेंस शीट एसेट. because as we have discussed earlier our accounting equation is directly relate with your balance sheet equation. तो जहां पे उसने 5 लाख लगाया तो वो किस में जा रहा है, कैपिटल में. और इधर से बिजनेस में कैश भी बढ़ रहा है यानी कि आपका रिसोर्स भी बढ़ रहा है, एसेट्स. तो अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है और इधर से बैलेंस शीट भी हमारी इक्वल आ गई. So in the above balance sheet, the total assets are equal to the liabilities of business, and since the business not yet started with the activities and has not earned any profit, the amount invested in the business is still 5 lakh. In case any profits are earned, it will increase the invested amount in business. On the other hand, if business suffers any loss, it will decrease the invested amount in business. तो अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो फिर ये हमारा बेसिकली जो जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया तो इट विल डायरेक्टली गेट रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल अमाउंट. उसके बाद इसमें एक एग्जांपल है. Example 1, and its effect on the different elements. You will observe that accounting equation always remain balanced. एक एग्जांपल के साथ हम इसको एनालाइज करेंगे कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस्ड रहती है. सबसे पहले ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000. 4,80,000 से हमने एक बैंक अकाउंट जैसे ओपन किया. सो your assets will get increased with this amount. तो इसमें जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है ये मैं आपको मेरे पास एक चार्ट है. जैसे इसमें क्या है, जर्नल एंट्रीज के बेस पे हमारे पास डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ रही है. तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इजीएस्ट वे में बताती हूँ. जो आपको हैंड रिटन नोट्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, उसके अंदर वी विल डिस्कस इट लेटर कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैसे कंप्लीट होती है. कि जैसे हमने ये वाला पैसा लगाया सपोज 4,80,000, इधर से बैंक बढ़ रहा है. ओके, और जैसे कि इसमें इसका एनालिसिस बताया हुआ है ट्रांजैक्शन का कि दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीज द कैश एट बैंक. एसेट तो बढ़ रही है और उधर से कैश भी हमारा कम हो रहा है. तो 480 से हमारा बैंक बढ़ गया और 480 से कैश कम हो गया. और ठीक है, तो इधर से प्लस होगा और इधर से माइनस होगा और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल आ जाएगी. और ऐसे ही अगर आप फर्नीचर ले रहे हैं 60,000 का और चेक जो है वो आपने इशू किया सेम डे, तो इसका एनालिसिस देखिए कैसे है.
तो ट्रांजैक्शन में क्या होगा, फर्नीचर 60,000 का फर्नीचर इंक्रीज हो गया और उधर से कैसे लिया आपने, एंड चेक और बाय बैंक हमने पेमेंट किया और इधर से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एसेट हमारी 60 से कम हो गई। ठीक है, ये डायरेक्टली ना बैलेंस शीट में पोस्ट किया होगा, मैं आपको इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना के बताऊंगी जिससे हमारी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत ही डिटेल्ड पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी जो 1,25,000 की आपने ली है और उसमें क्या किया, एडवांस 10,000 आपने कैश पे कर दिया इस पार्टी को। अब इसका एनालिसिस आप देखें, फर्नीचर हमारी एसेट बढ़ गई 1,25,000 प्लस, और इधर से कैश पेमेंट एडवांस में कितना जा रहा है 10, तो बैलेंस शीट में हम एसेट में से 10 लेस कर देंगे और इधर से हमने बाकी देना कितना है, 125 में से 10 पे कर दिया, 1,50,000 हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटी 115 की खड़ी हो गई। तो इसका मैं एक टेबल आपको बताऊंगी। गुड्स परचेज फ्रॉम एसेट सुमित ट्रेडर्स 55,000, और इसमें क्या है, हमने ट्रांजेक्शन में देखें गुड्स ली है तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 55,000 का और इधर से लायबिलिटी भी बढ़ गई सुमित ट्रेडर्स की। तो इधर से एसेट भी बढ़ रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है गुड्स जो हमारी 25,000 की है, ये हमने सेल की है रजनी एंटरप्राइजेज को 35,000 में। तो जब हमारी इधर से 25,000 की गुड्स सेल करेंगे इस पार्टी को 35 में, तो 10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा जो कैपिटल में ऐड होगा, उधर से गुड्स लेस हो जाएंगी 25 की वो भी। ओके, और जब सेल कर रहे हैं तो इससे अभी लेना भी है, तो हमारे डेटर्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो डेटर्स में हमारे 35,000 बढ़ रहे हैं, 35 हमने लेने हैं, तो ये भी प्लस हो गए। और इधर से हमारी कैपिटल यानी कि जो लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं 10,000 की कैपिटल प्लस हो गई, और इधर से हमारा स्टॉक भी जो हमने सेल की है स्टॉक 25 से कम हो गया। तो इसका सारा ट्रांजैक्शंस का जो एनालिसिस आप करेंगे, द फाइनल इक्वेशन एज पर द अबव एनालिसिस टेबल इट कैन बी समराइज्ड इन द बैलेंस शीट। अब इसमें ना प्लस माइनस करके नहीं दिखाया हुआ, डायरेक्ट फाइनल अमाउंट दिखाए हुए हैं, तो इसकी पहले इक्वेशन बना के फिर बैलेंस शीट में डालेंगे। सी, इन्होंने अल्टीमेट जैसे बताया है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 680 का ये, और ये कैसे बना 170 प्लस 5,10,000, ये 680 और इधर से भी 680। तो इसके लिए अभी आप होल्ड करें, जो डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आई टेल यू दीज थिंग्स इन डिटेल। और नेक्स्ट मैंने आपको बताना है यूज डेबिट एंड क्रेडिट। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट होल्ड ऑन।